Good evening, dear students. Today we are starting with the mechanics, that is Unit 2. Unit 2. It has a total 4 parts. Okay, so one to one we will be discussing. Now, if we are going with the name only, that is mechanics, okay, what is basically mechanics? Okay, mechanics basically is that branch of physics mechanics, that branch of physics which deals with the study of motion of material objects. Study of motion of objects. Okay? Mean mechanics is basically the study of motion of object. Okay? A cycle is moving, a bus is running, a plane is running, okay? Flying kite. Fine. I am speaking the gaseous particles which are vibrating, moving in the room, okay? Temperature increasing, and then particles, okay, they are vibrating, the vibrational factor of those particles that increases. Study of all those motions which are existing one or other way, okay, that comes under the head mechanics. Okay, now this mechanics, this is divided in two classes. Okay, one is kinematics and another one is dynamics. Okay, kinematics when we are dealing with motion. Okay, kinematics, okay, kinematics, and other is dynamics. Dynamics. Okay, now kinematics. What is kinematics? Kinematics basically is study of motion, okay, but without studying the cause of motion. Kinematics, studying motion without studying the cause of motion, without thinking the cause of motion. Mean why the motion is happening. Okay, just we will be studying, in kinematics we study only एक बॉडी ने मूव किया, ओके, कितने किलोमीटर मूव किया, किस डायरेक्शन में मूव किया, कितना उसका स्पीड था, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, ओके, ये सारे फैक्टर हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में. जब हम ये सोचने लग जाएं, ओके, कि व्हाई द मोशन इज हैपनिंग, व्हाट बेसिकली इज द कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों हो रही है, ओके, वो स्टडी आता है अंडर द हेड डायनामिक्स. ओके, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, ओके, taking the cause of motion into account, okay, taking the cause of motion into account. तो इट मस्ट बी क्लियर. ठीक है, काइनेमेटिक्स
मोशन को स्टडी करना है विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट थिंकिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके, एंड डायनामिक्स, स्टडी करना है मोशन को टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉज ऑफ। ठीक है, क्लियर? नाउ देखो, व्हाइल वी आर स्टडिंग मोशन, ओके, तो मोशन स्टडी करने के लिए हमें रेस्ट का पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो उसी की बात हम यहां पे भी कर लेते हैं। ठीक है, दैट ब्रांच विच स्टडी विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो स्टैटिक्स क्या बना? ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। स्टडी of objects at rest which are not moving. Okay, now अगर हमें कहा जाए कि डिफाइन रेस्ट, ओके, रेस्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? डिफाइन रेस्ट, देखो रेस्ट को होता क्या है? रेस्ट इज बेसिकली जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ये यहां पे था ऑब्जेक्ट और यहीं पे है, ओ पे ही, इसी पोजीशन पे है। इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, टाइम चेंज कर रहा है लेकिन पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ओके, और विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर और सराउंडिंग्स यू कैन से। ओके, it is that state of object when its position, position से मतलब है मेरा positional coordinate, x coordinate, y coordinate, z coordinate doesn't change, okay, with time, time के साथ साथ, और and विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब उस ऑब्जेक्ट के साइड पे यहां पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, मैं खड़ा देख रहा हूं, मुझे भी ऐसा ही नजर आना चाहिए कि इसका पोजिशनल कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है। ओके, फाइन, मीन पोजिशनल कोऑर्डिनेट टाइम के साथ भी चेंज ना करे और मुझे भी ऐसा ही नजर आए सराउंडिंग में जब मैं खड़ा हूं। फाइन, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेस्ट। Now, motion. How you will define motion? Motion is, suppose this is the point at which an object is existing. Object यहाँ पे है at some time. अब घड़ी ने चलना शुरू किया, ओके, टाइम चेंज कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इट्स पोजिशन ऑल्सो इज चेंजिंग। अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, तो along the axis its coordinate is changing with time. With time its coordinate is changing. Okay, fine. And if any observer is standing aside, surrounding में कोई खड़ा हुआ है और वो इसको observe करे, तो person will also be observing the same thing, should also be observing the same thing. Okay, कि कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन यू विल बी सेइंग कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एज टोल्ड, मोशन इज द सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का होगा, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, जब उसका पोजीशन चेंज करे, मतलब किसी एक्सिस के अराउंड उसके लोकेशन कोऑर्डिनेट चेंज करें। ओके, एक एक्सिस के अलोंग, दो एक्सिस के अलोंग, 3D में मूव कर रहा, तीनों एक्सिस के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, दैट वे लोकेशन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ, और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में पास में कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसको भी नजर आ रहा है कि यस चेंज कर रहा है इसका लोकेशन कोऑर्डिनेट। होप दीज डेफिनेशंस आर क्लियर। नाउ, rest and motion are not absolute. These are not absolute states.
ओके, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? दे आर रिलेटिव, ये रिलेटिव होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एब्सोल्यूट, व्हाट इज रिलेटिव? ओके, एब्सोल्यूट जो होता है दैट इज absolute, that instance, that situation, okay, that thing or that happening is absolute. Okay, कि whosoever is observing that happening or that situation or that instance, whosoever is observing mean कहीं भी ऑब्जर्वर हो, चाहे कहीं भी खड़ा हो, सभी को एक जैसा नजर आ रहा है। मीन the result is not changing, okay, the observation is not changing, okay, with respect to or with observer। एक ऑब्जर्वर ने देखा, वो भी सेम ऑब्जर्वेशन दे रहा है, दूसरा सेम ऑब्जर्वेशन, तीसरा सेम ऑब्जर्वेशन, ऑल द ऑब्जर्वर्स दे आर गिविंग द सेम ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट, व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो रहा है, ओके, डज नॉट चेंज विद ऑब्जर्वर। मतलब एक ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको भी वैसा ही नजर आ रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको भी वैसा ही नजर आ रहा है, थर्ड मीन एज मैनी ऑब्जर्वर्स दे आर वॉचिंग, सबको सेम, ऑल ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व द सेम वे, then that particular instance, that particular happening, that situation will be absolute. Okay, now what is relative? Relative basically is, कि first observer is observing, okay, and is saying कि this is the result, this is happening. Second observer is observing and is saying कि no, this is not happening, this is happening. Mean every observer which is observing is defining the situation in a different way. Okay, that particular situation, that happening will be called as relative। When the observation taken, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी हैपनिंग है, वो इंस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेकन चेंजेस विद ऑब्जर्वर, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वर, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ऑब्जर्वर जो हैं, ओके, वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन दें, उस पर्टिकुलर हैपनिंग को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन स्टेट को हम रिलेटिव कहते हैं। ओके, नाउ जस्ट थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, rest and motion, they are not absolute, they are relative। okay, let's take an example now। earth is moving, earth is moving, okay, you are sitting on the chair, you sitting on chair, ask your mom, ask your mom, okay, माँ मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं, रेस्ट और मोशन। ओके, नाउ you are sitting on chair, fine, someone is there, someone is in a spaceship and observing you with a telescope। Now what this person, now you, how the result will be changing, these two person, one observer is your mom
Another observer is the person who is there in spaceship holding a telescope. Okay, now your mother will say कि पुत्र जी, बेटा जी, यू आर एट रेस्ट. तू पागल हो गया है क्या? रेस्ट पे ही तो है तू, क्यों पूछ रहा है? Your mother will say like this. Okay, but the person, okay, who is there in spaceship, okay, will see you moving. आपका लोकेशन कोऑर्डिनेट उनके हिसाब से चेंज करेगा. Fine, and the person will be saying कि you are in motion. माता ने बोला you are at rest, and the person in the spaceship is saying you are in motion. Now your situation is, your situation observed by different observers is different, है ना? One is saying you are at rest, another is saying you are in motion. Fine. So rest and motion, they are relative. Take one more example. Suppose we have two trains. Fine. Moving with 60 km per hour on parallel tracks in the same direction. Okay? ट्रेन में कोई वाइब्रेशन नहीं है. One person sitting here, से उसका नाम A है. Another person sitting here, विंडो में देख रहा है B. ठीक है, ये दोनों पर्सन को ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है. फाइन. और ट्रेन में वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्मूथ ट्रेन है. ठीक. ओके. नाउ ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है. फाइन. अब इसका लोकेशन कोऑर्डिनेट जब ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो बी का लोकेशन कोऑर्डिनेट ए को चेंज होता हुआ नजर आएगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इसके सामने ही रहने वाला है. दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. बी जब ए को देखेगा तो इसको भी ए हमेशा ही नजर आता रहेगा और इसका कोई लोकेशन कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से चेंज नहीं करेगा, है ना? तो ये दोनों 60 किलोमीटर पर आवर से चले जा रहे हैं, बट क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो ए बी को कहेगा कि ये रेस्ट पे है, और बी को अगर पूछा जाए व्हाट्स द स्टेट ऑफ ए, तो वो कहेगा कि ए ऑल्सो इज एट रेस्ट. अब हमने क्या किया? अब हम एक ऑब्जर्वर ग्राउंड खड़ा हुआ है नीचे, यहां पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है. ठीक. इस पर्सन को हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लगा दिया. जी चल भाई, तूने ऑब्जर्वेशन लेना है और तूने बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू ए एंड बी. अब ये क्या कहेगा? दिस इज योर ऑब्जर्वर पर्सन. ओके, व्हाट ही विल बी सेइंग? ये क्या कहेगा? क्योंकि इसके हिसाब से ए का कोऑर्डिनेट, लोकेशन कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो ये कहेगा ए मोशन में है. ठीक. बी इसका भी लोकेशन कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो ये कहेगा कि बी इज इन मोशन. फाइन. लेकिन ये दोनों का ही मोशन की अगर बात करें, अगर हम बी को पूछें कि व्हाट्स द सिचुएशन विद ए, तो वो कहेगा रेस्ट पे है जी. एंड व्हाट्स द सिचुएशन अगर ए को पूछा जाए बी की, वो कहेगा रेस्ट पे है. ठीक है. तो इस तरह से हम सोच सकते हैं इस चीज के बारे में कि जो रेस्ट है और जो मोशन है, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट स्टेट्स. Absolute states. They are relative. Okay? Hope this is clear.